Okay, Namaskar, good evening, hello, and welcome to Glub Talk. Well, today is Glub Talk 3.5. It's a proud moment. It's an extremely proud moment for all of us, especially for me. The first time ever, Glub Talk 3.5, with the 17th guest, uh, where we have a great personality, a celebrity. I myself am very nervous for the first time. I don't know why. I have never ever encountered an interview or about talking about somebody's life, taking their journey through, has ever happened. So pardon me and my sincere apologies to all of you if I look nervous, if I sound little nervous. My name is Samrat Ghosh. I'm your host for the evening. I'm a former radio jockey with Red FM 93.5 way back 10 years ago. I'm sorry, I'm really, really bad today. You got to spare with me. You got to bear with me because I have loads of questions in my mind. I do not know how to put them across in a sequence. Once again, bear with me. So as I was saying, that my name is Samrat Ghosh. I'm a former radio jockey with Red FM 93.5. Way back in 2008 to 2010. It's been more than 10 over years that I have left my radio and I started something doing on my own, which is called Glib Talk. Glib means easy, glib means slippery, glib means often thoughtlessly. And the primary reason for Glib Talk happening on every Sunday is because that's a time out where we don't want to get into any kind of a serious conversation. Preferably, we should, or predominantly, we should have a candid conversation with a commoner who is a known face with a great mind. As we always say, the great mind and a known face. A known face does not have to be a face of a celebrity. A celebrity in our own ways. But our guest today is indeed a celebrity, no less than a celebrity. He is the Deputy Inspector General of Police of ATS Bihar, which is Anti-Terrorist Squad. All of you know that. I do not want to give you a lot of information beforehand because we got to hear it from his end. But let me tell you that he has passed out from IIT Kanpur. He has done his schooling from various parts of the country because his dad had a transferable job. He was getting into engineering. He is a chemical engineer by his academics. He almost got through his offer in Infosys. However, there is an interesting journey because of which why he rejected that particular offer and chosen to serve the country and be the protector of the realm. This is how we start our day today, where we have loads of interesting questions to ask Mr. Vikas Vaibhav, the IPS officer, the celebrity cop, one of the finest in the super cop in our country, who has been leaving his legacy mark over 16 years by serving the Indian Police Services. Here I present graciously to all of you, Mr. Vikas Vaibhav. Thank you so very much, sir. Why don't you just quickly turn on your video and give us a quick introduction of yourself. I have to unmute you. I have asked you to, yes, sir. Yeah. So very good evening to all of you who are listening. And indeed, it's a pleasure to be this Sunday evening with you. And it's like a glib talk, easy talk, as you rightly said. So I'm looking forward to your questions and let's have a nice conversation today. Thank you so much, sir. मुझे ना इतना डर लग रहा है कि पहली बार मैंने ना किसी को I'm not like this. Honestly, there are people who have been seeing this happening every Sunday. I'm normally not like this. I don't know today क्या हुआ मुझे. I'm very, very nervous. I am definitely thinking twice before asking a question because I don't want to get into any kind of a controversy. I don't want to get into anything which is political, which is biased, which may have a separate impact. However, keeping all these things in my mind, I would be asking those questions about you as an individual very, very legitimately, very cognizantly, and being absolutely careful and keeping my ears and my eyes open so that I don't get into trouble tomorrow. Having said that, Mr. Vikas Vaibhav, ladies and gentlemen, it's indeed a pleasure, sir. I mean, tahe dil se मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि people at your stature, people at your level, taking this time out for an hour to have a candid conversation, ये बहुत बड़ी बात होती है, sir. Ladies and gentlemen, if you do not know, you can just type Vikas Vaibhav in Google. You'll get to see yourself what he is, what his stature is, and what he is as an individual. But today we have gotten all of the opportunity to have a face-to-face conversation to let you know about an insight about his life, about his journey. So, sir, it's been over 16 years that you are working as an IPS officer. You have passed out from IIT Kanpur. You are a chemical engineer. Mechanical engineer. You're a chemical engineer. Mechanical engineer. Mechanical engineer. My bad. My father is a chemical engineer.
Your father is a chemical engineer. So ये that होता may है। have like, confused you. इंसान जब डरा हुआ होता है, थोड़ा नर्वस होता है ना, वो केमिकल को मैकेनिकल, मैकेनिकल को केमिकल कर देते हैं। नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, like, और like my life has been like, मैं खुद को जब देखता हूँ तो it's a very, I look at me as a very simple man from very simple background. I hail from a village called Bihat in Begusarai district of Bihar. I was born in Darbhanga in the medical college. My father soon thereafter got his job after doing his engineering, and he was posted to Guwahati refinery in Assam. And that was not a very easy time in Assam. A lot of violence was going on. It was in conflict. So that was the time my early childhood was spent in Guwahati refinery township. बहुत यादें हैं उस समय ब्रह्मपुत्र की, छोटे छोटे थे, घूमते थे. And then after 6 years, when I was 6, then my father got posted to Barauni refinery. Major years of my schooling passed over there, right from standard 2 to class 8. उसके बाद एक साल भोपाल में रहे, फिर 10th के बाद दिल्ली आ गए. तो 10th was in केंद्रीय विद्यालय नोएडा, और 11th and 12th one of the most privileged schools of Delhi, Sardar Patel विद्यालय. Correct. वहां से 12th करने का अवसर मिला. Right then, 97 it had come. So I entered IIT. 2001 I passed out. I gave the exam. पहली बार नहीं हुआ. I was shattered. But then टूटने नहीं दिए अपने आप को. 2002 exam I got selected. That's how I got the 2003 batch Indian Police Service. बहुत सारे द्वंद चले इस बीच में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Parents had a different opinion. I had a very different opinion. Parents wanted me not to do a job which had anything to do with the government. बहुत दूर जाना है, विदेश जाना है, पैसे कमाने हैं. बट मेरा कुछ बचपन से ही इंक्लिनेशन धीरे धीरे करते करते, that is how I am here, a mechanical engineer turned into a cop. So that was उसको जब मैं देखता हूँ तो बचपन से जो हिस्ट्री बुक्स मैंने पढ़नी शुरू की, तो कहीं ना कहीं वो कहानी बढ़ती गई. It transformed me from an engineer to a cop, and the journey continues. I got into very serious writing, blogging, photographing, going to spots जहाँ कोई नहीं जाता है. And it has been an interesting journey. In fact, कल भी 2 दिन से मैं घूम ही रहा था. I was in Gaya yesterday. I spent a lot of time in Rajgir, looking at places from a different perspective. The motive being to inspire youth to get inspired something in a way like me. Right. जैसे मैं बदल के कुछ I'm contributing in my own way. We need more people to do that, to think differently and try to do something in their lives which can change things as they would have wished to see. So there are 3,000 books right behind you. You are an avid reader. You are a blogger. You are a photographer. You are a traveler. Apart from your existing profession, what you've been doing over the last 16 years. So you and I were having a candid discussion because पहले तो आप किताबें पहले आप डायरी लिखते थे, जहाँ पे भी आप घूमने जाते थे आपके पास डायरी होती थी. आज भी वो डायरी है आपके पास, लेकिन अभी इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल एरा है. आपने ब्लॉगिंग में you have transformed into, and I have read your blogs. They are phenomenal. They are incredible. ये जो आपका जो दूसरा साइट है सर, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल, यू हैव गिवन योर बिट्स एंड बाइट्स इन मल्टीपल इंटरव्यूज, दैट इज ऑन यूट्यूब, दैट इज ऑन योर सोशल पेज, दैट इज ऑन योर इंस्टाग्राम पेज. You have incredible followers. After lockdown, you said that you have started being so digital. I mean, you were not like this before, but that's how you have come to our life as somebody who probably has a great story to inspire and aspire a lot of would-be's, wannabes, and the existing bees. Now, starting from your childhood, sir, I mean, whatever little I know, so पहले से माफी चाहूंगा अगर कहीं पे कोई गलती हो जाए. आपके पिताजी केमिकल इंजीनियर थे, आप ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट में, आई मीन मैकेनिकल इंजीनियर आपने किया है. आपका एक बहुत अच्छा सा स्टोरी है जहाँ पे आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब आप आईआईटी में पढ़ रहे थे, कुछ कॉप्स आए थे एक आप ही के कुछ क्लासमेट को किसी को ढूंढने के लिए, और वो एक स्कॉलर स्टूडेंट था अपेरेंटली, जहाँ पे सब परेशान थे कि ये क्या हो गया. और ये बाद में पता चला कि वो he was giving exams on behalf of somebody else. And you have always mentioned कि वो एक आपकी जिंदगी के शायद एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे आपको इंस्पायर किया है कि नहीं यार, मुझे ये रेगुलर इंजीनियरिंग वाली नौकरी नहीं करनी है, मुझे कुछ ऐसा करना है. उसके बारे में कुछ बताएंगे सर, if you don't mind. That was one of the incidents actually. जीवन में कुछ मैं जब देखता हूँ उस समय जब पढ़ता था तो आईआईटी गया था तो I was still not very clear. बचपन से एक मन था कि कुछ करना है very different. But when you enter IIT, कोई जीआरई की बात कर रहा होता है, कोई एमबीए करने की बात कर रहा होता है, people are talking of farm houses in Scotland, कुछ चल रहा होता है, like all dreams all around.
यू ऑल्सो टेंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, आपको भी लगता है कि ऐसा अच्छा होना चाहिए। तो इनिशियल फर्स्ट 2 साल कुछ कुछ लग रहा था कि ऐसा होगा, बट आई टेल यू हाउ इट स्टार्टेड। बचपन से हिस्ट्री इंस्पायर्ड मी, लाइक बचपन से जब फोटोज देखता था तो आई हैड दिस सेंस ऑफ विजुअलाइजेशन, मैं सोचता था कैसा रहा होगा, क्या होगा। फ्रॉम दैट विजुअलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई लैंडेड इन नालंदा। तो नालंदा जब मैं गया, इट वाज अमेजिंग। जब मैं पूछ रहा था लोगों से, लोगों ने बताया कि लोग चाइना से, श्रीलंका से, जापान से, they used to come in such times when traveling was not easy, means of communication were not like today, but people पूरे हिमालय को पार करके यहाँ पे आते थे, और they used to risk their lives, many of them died right in Nalanda। और जब मैंने देखा उसके स्प्रेड को, एक्सपेंस को, I looked at the museum, I looked at the burnt grains, it was something कि इस जमीन में जहाँ बाहर निकल रहा हूँ इस कैंपस से, अभी भी गांव में बिजली नहीं है, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। और past to what it was। तो वो एक बात चल रही थी। उसके बाद मैं पहुंचा भोपाल इन 9th। जब भोपाल पहुंचा तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने बिहारी बिहारी बोलना शुरू किया। तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, नॉर्मली बिहार से हूँ तो बिहारी ही बोलेंगे, बट कुछ दिनों के बाद लगा असल ये तो अच्छी बात नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये तो कुछ डेरोगेटरी सेंस में बोल रहे हैं। देन फिर वो चुभने लगी बात, मैंने कहा ये क्या है। फिर मैं सोचता कि यार बिहार एक समय ऐसा था, लोग इंस्पायर होते थे, पूरे भारत का शासन यहाँ से चलता था, तक्षशिला तक चलता था, दक्षिण तक चलता था, ईस्ट तक चलता था। उसके लोगों के बारे में एक ऐसी अवधारणा क्यों बनी। तो दिस वाज इन माय माइंड, चल रहा था। खैर पढ़ाई चलती रही, आई डिसाइडेड सबसे अच्छी जगह आईआईटी, वहां से पढ़ते हैं। पूरी मेहनत झोंक दी, अच्छे से पढ़ाई की। 97 में जो एग्जाम देके आए तो बहुत खुश थे। अचानक सुबह उठे तो माँ ने बताया पेपर्स लीक हो गए। एंड पेपर्स लीक कहाँ से हुए, तो पटना से हुए थे। सेंटर वॉज बिहार। इट वॉज शॉक ऑफ माई लाइफ, इतनी मेहनत करके आई वाज सो हैप्पी कि अब तो हो गया। मतलब होता है ना, कुछ एग्जाम की तैयारी करो और हो गया हो, फील लाइक अब तो खेलने जाएंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे, लॉट ऑफ प्लान्स। सडनली यू आर टोल्ड कि नहीं, एग्जाम फिर से देना है, 2.5 महीने बाद फिर होगा। तो एंड दोस 2.5 months वाज अ वेरी ट्रबल्ड फेज। खैर वो भी करते हुए पास्ट, इट वाज डिटरमाइंड टू गो टू आईआईटी, एंटर्ड आईआईटी। एट आईआईटी कानपुर जो इंसिडेंट आपने बताया, तो ऐसे ही चलता रहा। तो उस समय फादर वाज स्टिल पोस्टेड इन दिल्ली, तो उस टाइम कोई ज्यादा दिक्कत उस तरह की नहीं थी। In the second year, my father got posted to Barauni back. Barauni is in Bihar, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। और उसी समय जब हम लोग आए समर वेकेशंस के बाद, तो एक जो मेरा अच्छा दोस्त था, समस्तीपुर का था, वॉज वेरी गुड फ्रेंड। तो उसको जब देखते थे तो शुरू में आया था तो बड़ा ही वो, झोले में उसके चावल आ रहा है, कुछ दाल आ रही है, कुछ कुछ इस टाइप के माहौल से, गांव से आया था। पेरेंट्स हैड गिवन हिम सो मच कि जाओ अच्छे से पढ़ना वहाँ। सेमेस्टर चेंज हुआ तो उसके नए जूते आ गए। रिबॉक के जूते उसके गांव में किसी ने नहीं पहने होंगे, बट सडनली आई फाउंड कि 2 पेयर था, अच्छा रिबॉक का जूता था। एडिडास के शर्ट्स थे, किसी के पास नहीं थे उस समय, वो देखा। उसके बाद जब आया कुछ दिनों बाद तो देखा बाइक भी आ गई। यार क्या क्या कर रहा है भाई। तो ये समर वेकेशन के बाद हम लोग आए तो देखे पुलिस खोज रही है। तो पता चला क्यों। तो उन्होंने कहा स्कॉलर, एक स्कॉलर उस समय एक पूरा चला था, जो दूसरों के स्कॉलर अगर अच्छे होते तो वास्तव में स्कॉलर होते जो बहुत बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं। और दिस स्कॉलर वाज जो दूसरों की जगह पे एग्जाम लिखते थे, उनको लोकल लिंगो में दे कॉल देम स्कॉलर्स। अच्छा। तो स्कॉलर्स पैसे लेते थे एंड देन दे राइट एग्जाम्स, एंड दिस होल गैंग वाज बस्टेड। तो मेरा जो दोस्त था बेचारे का, मैंने कहा यार इतना टैलेंटेड स्टूडेंट, ही एंटर्ड आईआईटी ऑन द बेसिस ऑफ हिज टैलेंट, बट लुक एट हाउ ही इज यूजिंग हिज टैलेंट। Right. उस समय जब बिहार को देखता था तो बिहार में मोस्ट ऑफ द यूथ वो चाहते थे एग्जाम्स पास करना, बट पास करने के लिए कोई मेहनत करना नहीं चाहते थे। हर आदमी चाहता था कोई कहीं चिट्स मिल जाए, कहीं पास हो जाए, कुछ पैरवी लग जाए। ऑल ऑफ देम लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। और जब मैं देखता इसके बाद हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आई यूज्ड टू सी कि दिस वाज द लैंड व्हिच गिव बर्थ टू यूनिवर्सिटीज एट अ टाइम व्हेन देयर वाज नो यूनिवर्सिटी इन यूरोप। आप कैम्ब्रिज की बात कर लो, ऑक्सफोर्ड की बात करो, ऑल दीज आर लाइक 1200 years, 1000 years old, बट वी हैड देम इन 2500 BC इन तक्षशिला, बाद में नालंदा, ऑल दीज आर 2000 years old। और उस टाइप की जमीन में जहाँ पे उपनिषद लिखे गए, वेदांत की रचना हुई, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल थिंग्स दैट ह्यूमैनिटी हैज जनरेटेड। और आज के लोग, वी आर नॉट कैरिंग दैट लेगेसी, वी आर नॉट इंस्पायर्ड बाय दैट ट्रेडिशन। तो दीज थिंग्स वर हॉन्टिंग माय माइंड। उसी बीच में स्कॉलर वाली कहानी हुई, और पर्सनल मेरे साथ ये हुआ कि भाई घर जाता था बरौनी, अब घर से मनाही होने लगी कि यहाँ नहीं आना है। तो क्यों नहीं आना है, सारे लोग छुट्टी हो तो बैग टांगे, गाने बज रहे हैं, लोग मस्त में होके जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ यार मुझे जाना नहीं है, तो क्यों नहीं जाना है। तो पकड़ के शादियां होती हैं, एंड यू आर अ वेरी एलिजिबल बैचलर। तो कहीं मुकामा स्टेशन उतरे तो पता चला वहीं से उठ के चले गए
तो पिताजी बोले कि भाई ऐसा हुआ, मैं भी शरीफ आदमी इंजीनियर हूँ, मैं तो कुछ कर पाऊंगा नहीं, तो बेटा वहीं रहो। वो जो रहना होता था उसमें वो आई कुड फील द पेन ऑफ बिहार। राइट। पेन तो पहले से चल रहा था, देयर वाज एन इंस्पिरेशन, जो द पास्ट वाज इंस्पायरिंग, बट प्रेजेंट इज पेनफुल। आप आओगे तो आई रिमेम्बर स्मॉल इंसिडेंट्स उस टाइम के, मुझे याद है जब शादी का सीजन खत्म हुआ तो आए, एंड देन आई हैड अ हैबिट टू ट्रैवल टू माय विलेज, टू माय मदर्स विलेज। तो हम लोग बस में जाते थे। एक दिन कोई रैली निकली हुई थी एंड देयर वाज अ बिग जैम, किसी का एक्सीडेंट हो गया था। तो अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन कि क्या हो रहा है, मतलब व्हाट आर थिंग्स आर गोइंग ऑन। और तब मैं सोचता कि मैं ठीक है अपने दोस्तों की तरह मैं भी जाऊंगा, आई हैव नाइस जॉब इन जर्मनी, इनफैक्ट आई गॉट वन इन जर्मनी apart from that Infosys. So अच्छा। जाऊंगा, ऐसा करूंगा, I'll have a nice bungalow, all these things will be there. But then साल में कभी ना कभी तो घूमने आऊंगा, और जब आऊंगा things which have been haunting my mind right from very early childhood, अगर तब भी ये देखूंगा, तो then I will have a question to ask for myself. What contribution did I make? मैंने क्या किया इसको चेंज करने के लिए? ठीक है, at the end of life हो सकता है बहुत पैसे हो, I can do some bits, but why not start right away? Let's try to enter this system and try to do something. Instead of blaming everyone for what is happening, let's try to contribute. So that was how that message of history inspired me कि कुछ करना चाहिए। और फिर जॉब की सोचने मैंने छोड़ दी, मैंने कहा चलो जॉब, लेट्स टेक दैट रिस्क, आई स्टडी एंड राइट दिस एग्जामिनेशन, आई ट्राई टू गेट इनटू बिहार। डेस्टिनी हैड इट, ऐसे बहुत रेयरली होता है कि आपको अपना ही कैडर मिले, but in some way I felt that I was destined to come to Bihar, and very early at the age of 23 I was You were post. selected for the IPS, and at 25 I was like very much in Bihar and fighting all and sundry or things and trying to make a sense of things. तो बिहार में आने के बाद जो है ना वो डिटर्मिनेशन पहले से कुछ चेंज करने का, तो मेरी एंट्री भी बड़ी धमाकेदार हुई। एंट्री हुई कब? 2005 के इलेक्शंस में। इट वाज इलेक्शन टाइम, अच्छा। राइट? राइट। द फर्स्ट फेज आई वाज बीइंग ट्रेन्ड, तो उस टाइम ट्रेनिंग चल रही पहली बार हुआ था। जिन लोगों को याद होगा 2005 में 2 बार इलेक्शंस हुए थे। फर्स्ट वाज इन जनवरी फरवरी में चला था, और नेक्स्ट उस समय फिर सरकार बन नहीं पाई, प्रेसिडेंट चुन रहा, तो देन द नेक्स्ट फेज वाज इन अक्टूबर एंड नवंबर। तो फर्स्ट फेज आई वॉच्ड थिंग्स, देखता रहा। सेकंड फेज में इलेक्शन कमीशन वाज आल्सो वेरी डिटरमिन्ड, बहुत अच्छा करना है। एंड देन एट अ वेरी अर्ली पॉइंट ऑफ माय करियर माय स्ट्रगल्स स्टार्टेड विद पॉलिटिशियंस। होने लगा ना, मतलब लगता है यार ये ठीक नहीं हो रहा था, तो कुछ करते थे। और कई बार इट यूज्ड टू बी लाइक दैट, फिल्म में देखते हो ना वैसे वैसे, तो वैसा कुछ होता था, एंड आई यूज्ड टू थिंक ये क्या हो रहा है। और ऐसे बात कर रहे हैं तो जैसे मुझे याद है देयर वाज अ पॉलिटिकल लीडर उस टाइम में, तो कुछ शिकायत आई इलेक्शन के जस्ट एक रात पहले, तो उनको बिल्कुल, मैं भी उस समय आप सोच लो कि 25 साल का एज में क्या एनर्जी रही होगी, क्या जील रहा होगा, एंड कमिंग विद दैट बैकग्राउंड इन माइंड कि बदलना है चीजों को। तो वे उनको पकड़ के ले आए रात में थाने में। उसमें कुछ था, जो भी केस था प्रॉपर, मतलब चार्जेस थे। अब वो बेचारे इतने, वो भी ही वाज नॉट वेरी, मतलब क्वाइट यंग, एंड ही हैड डन हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम समवेयर। तो अच्छा। रात में लाए तो आई वाज लाइक गोइंग बाय द रूल बुक। मैंने कहा भाई आपको, आई एम अरेस्टिंग यू अंडर सो एंड सो सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एंड सो माय ड्यूटी इज आई शुड इन्फॉर्म योर रिलेटिव, तो शुड आई इन्फॉर्म योर वाइफ? तो बोला नहीं नहीं, रात में सोएगी नहीं। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर मैंने देखा यार बात इतनी, इसकी नाम ऐसा है, बट लुक एट द पर्सन, ही इज अगेन द सेम सिंपल आदमी है। वो सब चल रहा है, ही हैज अ लेगेसी, इज फाइटिंग इलेक्शंस। उसको फिर हाजत में, थाने में हाजत होता है, उसमें बंद कर दिया। तो मैं भी उस समय बड़ा जोश में रहता था ना, बंद कर दिया। तो भाई उन्होंने कहा यार इसमें बहुत बदबू आ रही है, कम से कम इसमें मत रखिए, बाहर रखिए। मैंने कहा भाई ठीक है, तो वैसे आप इलेक्शन जीत जाओगे तो देन डू, यू शुड आल्सो ट्राई टू मेक सम कंट्रीब्यूशन, ताकि आपका जो अपना थाना है वो बेटर हो, सो द नेक्स्ट टाइम यू कम यू हैव मोर कंफर्ट्स। दीस वर द थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन। ऐसा कुछ चलता रहा। लॉट्स ऑफ लवली एनकाउंटर्स, लॉट्स ऑफ देम। समडे आई प्लान टू राइट लाइक कैसे हुआ, एंड इट केप्ट ऑन। राइट। बहुत रेयरली किसी पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा हुआ होगा, एंड इट हैज बीन लाइक चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एंड if you read many of the things that you said, rightly said on Google, so many of these stories are often कि क्या हुआ था। और उसके बारे में सर सवाल करेंगे, जहाँ पे आपने कहा था आपका जब धमाकेदार एंट्री हुआ एज एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड वो आपके अंदर जो वो जोश था आज भी है सर, बट वो 25 साल का जोश और आज के जोश में थोड़ा बहुत फर्क होता है, बिकॉज यू हैव आल्सो एलिवेटेड इन योर रोल एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो तो सर आपने वो कहा था कि एक जगह में, आई थिंक आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, बट थोड़ा बहुत अलग अलग साइड का, जब आपने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया, थोड़ा करियर के उस टाइम में से चालू करते हैं, और आपने कहा था कि एएसपी जब आप बने और आप पोस्टेड हुए,
आपने एक जगह बहुत अच्छी चीज कही थी। आपने कहा था कि मेरे पास वो कॉर्पोरेट वाली हायरिंग फायरिंग वाली ऑप्शन नहीं थी। मेरे पास एक टीम दिया गया था जो गवर्नमेंट रिक्रूट करके हमें देते हैं, और उसी टीम के साथ आपको काम करना है, राइट? एंड दैट्स हाउ यू आर बीइंग द लीडर। यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल, एंड उसी में से सबको समेट समेट के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके आपको काम करना पड़ेगा। तो इस दौरान सर वो चैलेंजेस क्या थे, सबसे बड़े चैलेंजेस? आई मीन, आई थिंक वी हैव लोट्स ऑफ corporate professionals are also out here. Nobody is from your background, trust me. I'm sure a lot of them are also equally probably very nervous and scared to join the conversation. But how did you manage in such a diversified, because there are people who are veterans जो आपसे उम्र में बड़े थे. आपने बहुत openly कहा है कि कुछ officers they were corrupt, they were not trustworthy, they were probably not reliable. कोई काम करना चाहता है, कोई काम नहीं करना चाहता है, लेकिन आप ही को मैनेज करना है. How difficult was that, and how did you overcome such challenges of managing a team जिनके ऊपर आपका कोई I mean, you didn't have any influence to even recruit them yourselves? होता है ना कि मुझे मेरा टीम मुझे बनाना. तो can you just let us know? देखिए, the motivation I've explained, a lot of motivation to do something to make some change. Time is limited in your hands, और जो भी मिलेगा आपको, तो पुलिस में जो rightly said वैसा ही होता है. अब कहीं पोस्टिंग होती है, have no choice. पोस्टिंग आ गई, आपको जाना है. When you go to the place, आपको कुछ पता नहीं होता है, मतलब कौन होगा, कैसा होगा, तो you take some time to realize कैसे लोग हैं. मैंने, और इसमें अगर मेरा इंटेंशन बड़ा क्लियर हो, like everyone joins the police with certain intentions. A lot of people who join with the intention of making money, they go behind it all their lives. Many of them land up in jails, do so many things, चलता रहता है. I had a very clear intention in my mind. मुझे बदलना था, but बदलूंगा if I spend my whole energy in changing people around me, तो वो सारा एनर्जी टोटल चला जाएगा. So I was focused on my goal. Like if I am going to a place, my goal is to control the crime. So my only focus was that, and everyone else in the system, उसको मैं देखता था इसका मैं यूज किस तरह से कर सकता हूँ. करप्ट होगा ठीक है, if I get a complaint, something is of that sort is reported, simple action होगा, and that is to be clear on the very first day we met. The first meeting was कि आप जो करोगे, you'll be liable. I'm not here to protect you or do, but I have this mission. This is my mission. If you, कहने का मतलब वही था, आप साथ में चलोगे, शिकायत नहीं मिलती है, तो we'll go along very well. And when they look at the leader, और लगता है कि नहीं ये जो आदमी कह रहा है वो ऐसे ही नहीं कह रहा है, he's actually doing it, he means it. तो शुरू में some people would hesitate, but आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे, even in the most demotivated lot, जिसके मन में थोड़ा सा लगेगा कि यार ये कुछ बात तो सही कह रहा है, कुछ दिन अच्छे से कर लो, तो वो 2-4 लोग से फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है. और टीम में कुछ लोग जब काम शुरू हो जाता है ना, तो उनको लगता है हम साइड में हैं, तो दे आल्सो फील कि यार ये चल रहा है तो क्यों नहीं इससे हम भी कुछ करें. तो मुझे याद है जैसे बिहार में लाइक एक पुलिस एसोसिएशन भी होता है, तो उसमें लाइक जो सिपाही लोग होते हैं, तो बाकी स्टेट्स में नहीं होता है, इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी वर्दी नहीं पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहन के घूमते हैं, एंड दे आर द मोस्ट, मेनी ऑफ देम आर बिलीव्ड टू बी वेरी इनडिसिप्लिन. उस समय खास करके 2005-6 और ज्यादा था, वो लोग कोई काम नहीं करते थे. कुछ काम नहीं करना है, दिन भर बैठ के बस पुलिस लाइन पॉलिटिक्स करनी है. बट बिलीव मी, इवन सच पीपल व्हेन दे सॉ सच वर्क वाज बीइंग डन, जब बगहा में था, इट हैड हिस्ट्री ऑफ क्राइम. लोग कहते थे कि वाल्मीकि के समय से यहाँ पे अपराध चलता है, वाल्मीकि तो यहीं के थे. एंड देन आई चेंज दैट होल पर्सपेक्टिव. आई सेड कि वाल्मीकि रत्नाकर थे, वाल्मीकि बन गए, तो बदल गए, तो तुम क्यों नहीं बदल सकते हो. तो वी वर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल टू सरेंडर. डिफरेंट वेज एंड मीन्स, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने बताया है हाउ इकोनॉमिकली वी हैव हैम्पर्ड देम, बट द मेन थिंग वाज टॉकिंग टू पीपल, कनेक्टिंग टू पीपल. उसमें ये जो एसोसिएशन वाले सिपाही थे, जो वास्तव में कोई काम नहीं करते थे, बहुत अच्छा काम किए. वो गए उनके घरों में, they could win elections in the police, they could also convince criminals, they could convince their families. So they had a talent which was being unused. Normally वो ऐसे ही पुलिस लाइन में बैठ के पॉलिटिक्स करते, तो उनको बुला के मैंने बात कही कि देखो ऐतिहासिक काम हो रहा है, इतिहास से इंस्पायर्ड है, तुम भी कुछ करोगे तो देखो तुमको अच्छा लगेगा. इट हिट. उनको लगा कि नहीं, हमने कहा तुम बात अच्छी करते हो, अपने लिए वोट ले सकते हो, तो डिपार्टमेंट को इतना कर दो कि जाओ बात करो, ट्राई टू कन्विंस देम कि रत्नाकर वाल्मीकि बन सकते थे, तो अपने बेटे को, अपने संबंधी को समझाओ, ही कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हिज लैंड, कुछ अच्छा करेगा, सरेंडर कर जाएगा, विल टेक केयर ऑफ हिम, बट ये पूरा गोरख धंधा बंद हो जाएगा, द लैंड विल बी पीसफुल. इट वर्क. तो ऐसे ही बहुत सारे लोग की अपनी अपनी पोटेंशियल्स हैं, कैपेसिटीज है, दे आर लाइंग मिसयूज्ड. इफ द मिशन इज क्लियर इन योर माइंड, करना क्या है, यू फाइंड अ रोल फॉर एवरीवन. इनिशियली नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम. इनिशियली यू स्टार्ट विद दैट नंबर जो आपके बिल्कुल
लाइक माइंडेड है, बट देन व्हेन थिंग्स आर द रियल मोटिव और रियल इंटेंशन, तो मैंने यही देखा कि चीजें पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में भी बदलती हैं, लोगों की मेंटालिटीज बदलती हैं। इवन मोस्ट करप्ट पीपल, एक दो लोग होंगे तो वो तो बिल्कुल जो जैसे हैं नहीं सुधरेंगे, तो दे फेस द म्यूजिक, बट द रेस्ट ऑफ देम depend on their leader. And policing, especially in places like Bihar, much of it depends on who the SP is या who the main leader is. उसके motives के हिसाब से लोग people know how to gel themselves, क्योंकि they have worked their lives with different leaders. कोई ऐसा होता है जिसको हर थाने से मंथली पैसा चाहिए होता है ना? तो they, how they do it, even it remains mysterious for me even today. कैसे करते हैं, कैसे बोलते होंगे, but होता है, हम भी सुनते हैं। दूसरा है कुछ और कर रहा होता है, so many things people do, और उसमें अगर आप बहुत क्लियर हो कि देखो भाई, मेरे नाम से अगर कोई फोन भी आपको गया, if someone says कि आपकी मैडम का फोन आया है या वाया मीडिया कुछ भी आता है, I should be the first person to know, because be very clear, ऐसा कोई फोन, I have no expectations from him except for work and work in the real sense, and if I get in complaint, natural action जो होना चाहिए, and in fact I was so predictable, मेरे जो I talk to the subordinates, मेरे उनसे सर ये अगर हुआ तो like I remember I was posted in Darbhanga, तो I had a habit कि जो भी मिलने आता था उसके एप्लीकेशन पे लिख करके मैं भेजता था, भाई ऑफिसर इंचार्ज सो एंड सो रजिस्टर एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेट। वो लेके चला गया थाने पे, और थाने पे गया तो नॉर्मली मैं इसलिए देता था, नॉर्मली पुलिस में क्या करते हैं कि वो एप्लीकेशन आई लग गई, वो फिर कोई आदमी दूसरा लेके थाने पे जाएगा। माय प्रैक्टिस वाज डिफरेंट, आई यूज्ड टू सेंड द पर्सन हु केम विद दैट सेम लेटर विद एन ऑर्डर। शुरू से ही होता है। तो थाने में पहुंचा, थाने में फिर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, रास्ते में फोटोकॉपी कर लेता है, एंड देन ही कम्स बैक टू मी, सर आपने लिख के दिया था, देखिए तो भगा दिया गया, एंड देन ऑफिसर इंचार्ज नोज दैट ही विल फेस द म्यूजिक, तो वो ही कैन प्रेडिक्ट कि अब क्या होगा, सस्पेंड होना ही है। तो इनिशियली जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता था, लाइक आई रिमेंबर इट हैपेंड इन रोहतास, इट हैपेंड इन दरभंगा, इवन एज अ डीआईजी इन भागलपुर, like initially about 12 officer in charge got suspended on a simple reason कि भाई FIR आदमी लेके गया and he did not get a proper response in the police station. Person comes back, it was like simple mathematics, अगर ये होगा this is the punishment you get. Correct. When you become so predictable, तो वो भी जानता है क्या करना है क्या नहीं करना है, and then I used to frame rules. Like these 5 issues are like zero tolerance. Right. If you do not register FIR, the complaint comes, it is equal to suspension plus a proceeding. If the case should be registered in so and so section, you do not do that. If you are trying to make a robbery into a theft, so that crime figure doesn't go up, again this is the punishment you get. अगर रास्ते में कोई शिकायत मिली कि किसी से आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो, it comes to me again, तो these were like issues जो बिल्कुल क्लियर थे कि ये अगर हुआ इस टाइप के, तो फिर 5 इश्यूज बिल्कुल क्लियर होते थे कि ये नहीं करना, अगर ये करोगे everyone is very clear. Right. उसके बाद जो है तो ठीक है, बट ये जीरो टॉलरेंस मतलब ये अगर हुआ, तो मुझे याद है मतलब है ना, जैसे ऑफिसर इंचार्ज उसको पता चल गया कि साला पहुंच गया वहां पे फिर से लेके, तो बिल्कुल हंसता हुआ आता था कि सर आपको सस्पेंड होना ही है, हुजूर मतलब सस्पेंड तो होना ही है, ठीक है, मतलब इस तरह से लाइक बाहर भी वो बताता था कि आपको सस्पेंड हो गए, मतलब आपको पता है देखिए आ गया। तो दरभंगा वाला इंसिडेंट इसलिए याद आ रहा है कि आदमी फिर खोजता हुआ आया था पीछे कि भाई वहां पहुंच तो नहीं गया, एंड द मोमेंट ही एंटर्ड माय ऑफिस, वो देखा कि वहीं पे खड़ा है, एंड देन ही सेड कि अब तो हो गया क्या करना है, और मुझे भी क्या करना, तो रूल वाज एज सिंपल एज दैट कि होना है। just बाद में वी हैड अ वेरी कैंडिड कन्वर्सेशन, जब हो गया तो मैंने कहा भाई गलती तुमने की तो हुआ, लेकिन आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू, तो ठीक है, आई विल रिलीज यू फ्रॉम सस्पेंशन आफ्टर सो मेनी डेज, आई विल अगेन पोस्ट यू, बट देन माय पर्पस इज नॉट टू एक्चुअली पनिश यू, बट माय पर्पस इज सो दैट यू लर्न हाउ टू डिलीवर योर सर्विसेज इन अ बेटर वे टू द पीपल। तो इस तरह से कभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं ना, इवन इफ आई पनिश समवन, द इंटेंशन इज नॉट टू एक्चुअली हार्म हिम, द इंटेंशन इज सो दैट द सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग इन अ बेटर वे। तो शुरू में जो 12 लोग शायद सस्पेंड हुए होंगे, द रिजल्ट वाज सच कि अगले 2 साल कभी भी ये शिकायत नहीं मिली कि एफआईआर नहीं हो रहा है, एंड द हु बेनिफिट्स, द पीपल बेनिफिट। और उसमें भी जैसे जो प्रोसीडिंग्स हुई होंगी, इफ आई सी कि नहीं काम पीछे सुधर गया है, पनिशमेंट इज स्लाइटली ग्रेडेड लो, वैसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा हो गया। These are ways and means, जिसमें mission is clear, to deliver better services, to make a change. The same people with the same lot, but with a different approach of thinking, spelling out your priorities very clearly, and always remaining focused on what the goal is. the goal is. Things work.
और सर आपका जो पहला प्रमोशन हुआ था फ्रॉम एन एएसपी टू एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यू हैव सेड समवेयर कि रात को 10:30 बजे आपके पास कॉल आया था डीजीपी से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे इन योर लाइफ, जहाँ पे आपको वो एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बट जब आपका एसपी से डीआईजी का प्रमोशन हुआ, तभी भी कुछ ऐसा हुआ था, या फिर इज इट लाइक वेरी फॉर्मल? आई मीन हाउ इज दैट नहीं, टू एसपी से डीआईजी का प्रमोशन, एसपी से डीआईजी का प्रमोशन ऐसा हुआ था ना, उस समय काफी कुछ हो चुका था। तो आई वाज लाइक सिटिंग इन ट्रेनिंग पुलिस हेडक्वार्टर्स में, ट्रेनिंग देख रहा था, उसी टाइम पता चला कि प्रमोशन हो गया। अच्छा, आई वाज नॉट इवन इन बिहार, मैं उस समय पंजाब में था, एंड आई गॉट पोस्टिंग आफ्टर 3 months। प्रमोशन होने के बाद फिर देन आई गॉट पोस्टेड टू भागलपुर। इट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। उससे पहले आई वाज सीनियर एसपी पटना, तो पटना के बाद आई टू टेन्योर्स इन पटना, एंड देन आई गॉट पोस्टेड एज असिस्टेंट टू आईजी ट्रेनिंग। वहाँ पे करीब डेढ़ साल पुलिस हेडक्वार्टर्स में रहा। दैट वाज द टाइम व्हेन आई गॉट टू रीड द होल ऑफ महाभारत। पूरा टाइम काफी मिला मुझे, तो पढ़ा मैंने। एंड भागलपुर वाज वेरी हेक्टिक, लाइक आई स्पेंट ऑलमोस्ट 3 years इन भागलपुर, और पूरे टाइम पब्लिक से घिरा हुआ। बीच में आई हैड चार्ज ऑफ 2 रेंजर्स, लाइक मुंगेर एंड भागलपुर, एंड 9 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इतने लोग आते थे एट वन, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कि सुबह 10 बजे से मिलना शुरू किए और रात के 9 बजे तक चल रहा है, बस लोग से मिल ही रहे हैं। खाना भी उसी बीच में थोड़ा कुछ बना के खा लिया। एंड आई वाज वंडरिंग हो क्या रहा है, बट द पीपल कमिंग विद सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो बिना सुने जाया भी नहीं जाता था। करते थे, अच्छा भी लगता था। चलो, with me in place, कुछ भी अगर if I am contributing even an iota which can bring some change in some person's life, so my life is actually, I'm serving my purpose of existence. so you're more of a people's cop, right? You're more a people's guy. I mean, आपका कोई भी इंटरव्यू या फिर आपका जो भी आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आई थिंक सबसे बड़ा आई थिंक न्यूज़ इट वाज कि लोगों को बहुत खराब लगा था. पीपल हैव एक्चुअली gone beyond to showcase that how bad they felt when your first transfer happened. That was on the television, that was in the news, and there was a live telecast that has happened. तो सर ये जो ट्रांसफर्स होते हैं जो हम मूवीज में देखते हैं एज सिविलियंस, कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको ट्रांसफर, उसका तबादला हो जाता है, ये आपके साथ कभी हुआ है ऐसा? आई एम सॉरी, आई मीन डोंट देखिए, मैं तो इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज मैं इसको इस तरह से देखता हूँ ना कि एवरीवन इज गिवन अ रोल, यू शुड परफॉर्म बेस्ट whenever you are at that role. If राइट. the change comes, change is imminent. It is going to come today or tomorrow or maybe day after tomorrow. Always be prepared for change. But जो भी टाइम आपको मिला है, give your best and never bother. Transfer होगा तो फिर दूसरी जगह करेंगे. You have lots of things to do in life. पटना सीनियर एसपी से हटे, ट्रेनिंग में गए. I had my passion of history. महाभारत ऐसे कभी नहीं पढ़ पाते, टाइम कहाँ मिलता है. And today, if I'm quoting from the Mahabharata, I'm narrating stories from the Mahabharata. That whole 1 year is actually, I growed intellectually. Right. Now I can write on spots and can link into the Mahabharata with ancient stories. वैसा टाइम मिलता नहीं, आप सोचते रहते हो कि अच्छा ये होगा तो पढ़ेंगे, ये होगा तो पढ़ेंगे, years pass on, Correct. टाइम मिलता नहीं. तो मैं देखता हूँ कि God has a plan for you all the time, and every one of us is born unique. Everyone has a unique set of DNA. सबकी क्वालिटीज अलग हैं, दिखने में भी अलग अलग हैं, बट क्वालिटीज भी अलग हैं, सोचने का तरीका अलग है, पर्सपेक्टिव्स अलग हैं. तो लाइफ में whatever message you've come along coded with, you should try to deliver and enjoy it to the fullest. Live a full life. तो वो आप तभी कर पाते हो. जॉब तो एक चीज है, जॉब इज डू इट विद फुल डिवोशन, ड्यूटी, बट और जो आपके इंटरेस्ट है, पैशन है, इफ यू गेट द टाइम फॉर डूइंग दैट along with your job, then life is a pleasure. मजा आता है. Especially in policing, like policing, most of the people you get to meet are people who come with problems, with issues, with troubles. दुखी करने आता है, दुखी रहता है तो आपको सुनाएगा तो आप भी दुखी हो जाते हो. तो 50 आदमी सुन लिया, सर पकड़ के बैठ जाओगे, लगेगा थोड़ी देर एकदम चाय पी के शांति से सुनो, तब अगले आदमी को सुनेंगे. बट इसके बाद when you read a good book, you visit a good historical site, you start thinking about different things apart from mundane policing, then life gets balanced. एक तरफ से ऐसा प्रभाव आ रहा हो, एक तरफ से पॉजिटिव प्रभाव आ रहा हो, जो मिक्स होता है, then you become a balanced personality and you actually feel very positive, very energized, or with that spirit you actually deliver better. कभी आपको लगा है ऐसे कि just a little probably a candid and a very funny question, after coming to the fraternity, after coming to serving people, serving the government, serving the nation, serving the country,
कभी आपको लगा था कि कभी आज तक कभी लगा है कि नहीं यार वो इन्फोसिस वाली नौकरी या फिर वो जर्मनी वाला जो नौकरी मेरे पास आया था वही ठीक था? ये तो बहुत, आई नो आई वांटेड टू बी द चेंज, आई वांट टू ब्रिंग इन दैट पर्टिकुलर चेंज व्हिच यू डिड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट यू डिड, बट कभी ऐसा फीलिंग कभी भी आया है सर? आई मीन इफ यू डोंट वांट टू से दैट्स मन तो फाइन। मन तो चंचल है ना, नहीं मन चंचल है तो एवरी टाइम व्हेन यू लुक बैक की अपॉर्चुनिटीज क्या थी, राइट, द डिलेमा इज ऑलवेज देयर, बट ऐसा कभी नहीं आया, मतलब आई हैव फेल्ट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन दैट आई मेड। जिसमें मैं ले भी रहा था तो उसमें मैं बहुत सोच समझ के लिया था, इफ आई एम टेकिंग दिस डिसीजन आई मस्ट बी वेरी श्योर अबाउट इट, बिकॉज आई शुड नॉट हैव दैट रिग्रेट। और उसके बाद अब मैं देखता हूँ जो लोग who made those choices, when I interact with many of my batchmates who are actually owning companies, they're doing things like that in foreign lands. When they get to meet me and look at the work I'm doing, so they feel jealous of me. ये बात मुझे तब ज़्यादा लगी. Like I got the IIT Kanpur Satyendra Kumar Dubey Award, like Memorial Award. And that is given for integrity, highest levels of integrity in professional life. And all these friends are so envious. यार हम लोग जो भी कर रहे हैं, we are working for some corporate, we are working in some non-descript place. No one knows us. कोई जानता भी नहीं है, मतलब जो भी कर रहे हैं. करेक्ट। But यार तुम जो कर रहे हो सही करो गुरु. तुमने डिसीजन सही लिया था. Like now, when you move around, people look at you, they get inspired by you. So there's always in life में when you make choices, every choice will have its own consequences. करेक्ट, Like if you इस तरह से मैं देखता हूँ, and everything has its own positives, has its own negatives. Right. So when you have to make a choice of the type that I made, then be very clear आपकी life में mission क्या है. Like for me, when I used to look at life, मैं चाहता था कि भाई जिंदगी में it's self satisfaction. I should be happy in things I do. I do not need so much. I do not to create an empire. All these things are temporary. They'll pass on. But I want to live a full life, a satisfied life with the passions that I have, and in a way that I can see that I'm making some positive contribution to society. That was a goal. तो उसी पे चल रहा हूँ, इसलिए I'm satisfied. But होता क्या है जब कई बार आप सोचते हो कुछ कर रहे होते हो कुछ, तो फिर वो क्राइसिस आ जाती है. आप सोचते हो कर क्या रहे हो, and then you end up confused. लेकिन सर जो जैसे आपको जो मिला है, जो सम्मान आपको मिलता है, जो जो वर्दी पहनने के लिए पहनने के बाद जो फीलिंग होती है, उसका एक अलग ही समा होता है, अलग ही एक फीलिंग होती है. यू फील सो प्राउड दैट यू आर फॉर्चुनेट इनफ दैट यू आर गिवन दैट पर्टिकुलर यूनिफॉर्म टू वेयर. राइट, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर जो उन लोगों के पास नहीं है. तो उनके नो वंडर दे आर आल्सो इक्वली जेलस कि यार इनको मिल रहा है वो मौका, मुझे काश हमें भी लेकिन मिला एक होता. चीज तो बताता हूँ, हाँ, वर्दी पहन के, वर्दी तो बहुत लोग पहनते हैं, बट वर्दी पहन के अगर आप सत्य के लिए लड़ाई करते हो, राइट, यू फाइट फॉर द ट्रुथ एंड यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज व्हिच आर नॉट वेरी गुड एट ऑल टाइम्स, बहुत सारा प्रेशर आता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स अपॉन यू, बट यू रिटेन दैट, यू होल्ड योर कंपोजर एंड यू एक्चुअली डिलीवर व्हाट यू वांटेड टू, राइट. दैट इज सच सो सेटिस्फाइंग. आपको और देन यू एक्चुअली फील द पावर ऑफ द यूनिफॉर्म. इतने बड़े बड़े लोग जिनके आप इतना नाम सुनते होंगे, वो भी कांप जाते हैं जब जानते हैं कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग बट आई कैन नॉट चेंज दिस मैन. दैट इज योर इनर पावर व्हिच कम्स फ्रॉम विदिन, दैट इनर सोल, स्ट्रेंथ फ्रॉम द इनर सोल. और वर्दी पहन के यू गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ क्लैशेस होते हैं. क्लैशेस ऐसे होते हैं कि आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से अचानक ये हो गया, बट देन वंस यू आर क्लियर, जैसे उसी पे मैं कह रहा था डिसीजंस, एवरी टाइम देयर आर सो मेनी एथिकल डिलेमास इन पुलिसिंग. या तो अगर आप चाहते हो कि मैं चाहता हूँ बहुत अच्छी पोस्टिंग चाहता हूँ, यू ट्राई टू प्लीज द पॉलिटिशियन, यू ट्राई टू डू सो मेनी थिंग्स, गो जिसमें किसी को आप ऑफेंड नहीं करो, ऑल द टाइम यू ट्राइंग टू मेक पीपल हैप्पी, दोज हु मैटर. तो ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ लाइफ. बट व्हेनेवर यू डिसाइड दैट आई हैव टू डू द राइट थिंग, it will have consequences. If you decide to do the wrong thing, again it will have consequences. Now you have to take a decision what type of consequences I want to see in the future. If you have done the right and you're facing the consequences, internally you'll be very happy and satisfied. बट आप कुछ गलत करते हो देन अंदर से वो कभी आत्मसम्मान जिसको कहते हैं वो कभी आएगा ही नहीं. यू विल नेवर अर्न दैट सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर यू. यू कैन लिव अ लाइफ व्हिच इज वेरी इल्यूजनरी और समथिंग लाइक दैट, बट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा आपने किया क्या, बिकॉज यू हैव नॉट grown up as an individual. आप कुछ चीजों के पीछे भागते रहे, but if you have maintained your composure, you have taken decisions which needed to be taken, and you have that pride that if I was, अगर मैं था उस जगह पे, I took this decision, no one else could have done. It's a very different feeling. And let me tell you, if you सोच satisfy, अच्छा लगता है भाई जो बात सोची थी वो आज कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि सोच के आए और कोई चीज बाहर के ले गई, ले. भाई नहीं.
आज भी वही है। और लोग कहते हैं कड़क ऑफिसर, तो कड़क ऑफिसर जो होता है ना, कड़क मतलब ये नहीं कि आप जाके बिल्कुल किसी का घर तोड़ दिया, किसी को पीट दिया। कड़क मतलब इफ यू हैव डिसाइडेड टू डू द राइट, यू विल डू द राइट। नो पावर ऑन अर्थ कैन इन्फ्लुएंस यू इन डूइंग द रॉन्ग थिंग। वो एक अलग, इट कनेक्ट्स यू डिवाइनली विद द सुप्रीम सोल। आपको लगता है कि नहीं, दैट पावर इज इन मी, और कुछ नहीं। ऑल दीज थिंग्स पीपल अराउंड यू, आप देखोगे आफ्टर सम टाइम दे आल्सो रियलाइज कि भाई ये आदमी ऐसा ही है। एंड एवरीवन हैज अ प्लेस इन द सिस्टम। कई बार होता है ना, पीपल अराउंड यू डिमोटिवेट यू, या सरकार से लड़ोगे, या इससे लड़ोगे, या उससे लड़ोगे, वही तुम्हारा तो करियर बर्बाद हो जाएगा, तुमको तो कहीं पोस्टिंग भी नहीं मिलेगी। देन आई टेल देम, यार लुक एट मी, आई sailed through all these things and I still have right postings where I could contribute. तो कभी भी आप लाइफ को एक पर्सपेक्टिव से मत देखो। इफ यू वांट टू डू समथिंग, everyone is born unique, again with a different DNA, with a different message. Try to be that message that you are. Things will succeed in life. सर, ये जो कहते हैं कि to walk in the path of truth with unyielding integrity, with that values, right? I'm sure you as an individual must have come across a lot of challenges, right? In your own way. क्योंकि सत्य के पथ में जब आप चलते हो तो आपके सामने कठिनाई भी सबसे ज्यादा आते हैं। तो कभी वो एक स्केरियस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी में कभी आया है जहाँ पे आपको लगा डर, मतलब आखिर तो हम इंसान ही हैं, राइट? वी ऑल आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे। तो आपकी जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई मौका आया था कि आपको सच में लगा, आपको डर लगा, आपको लगा कि आई थिंक अभी तो कुछ और होने वाला है? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम नॉट ट्राइंग टू go in a different route. How do There you were moments like, especially मतलब होता है जब बहुत लोग पीछे पड़े हों, होती है सर, राइट? कभी कभार you are doing everything with the right intention, but people are actually trying to damage you or trying to attribute all your actions in some way, in a different manner, which they'll try to create rumors around you, कुछ होगा भाई, ये ऐसा है। But what I have seen is जब ऐसा होता है ना, तो आपको लगता है कि people are trying to harm you, तो हो सकता है कि ऐसा तो नहीं, they will succeed. But then उसी टाइम जैसे like I am very spiritual, है ना, तो मैं बड़ा उस टाइम मैं 2 मिनट के चुप करके सोचता हूँ, and then I say नहीं, सही है। और मैंने देखा what I've experienced, जो फेजेस आते हैं लाइफ में, when you feel very disturbed, आपको लगता है पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो गई है, people all around you are viewing your actions with suspicion, but निकल जाता है। And if you are with the right intention, you steer through, change will come। और दूसरा, जो अपने डर की बात कही, तो डर इस तरह की चीजों में नहीं आता, सही काम कर रहे हो पुलिस में। लेकिन वैसा हुआ है कई बार, आई हैव हैड वेरी क्लोज एनकाउंटर्स, यहाँ से 6 इंच दूर से गोलियां, 100 गोली चली, और लगा कि हर टाइम देख रहा था कि अब क्या बचाव हूँ। एंड मोर देन मी, मैं तो था ही, सबसे आगे था, द होल फोर्स, more than 1,000 bullets fired in just 10 minutes. It was a Naxal infested Rohtas on the hills at 5 a.m. in the morning. Imagine IIT से पढ़ के, सब कुछ करके, doing the police training, and in a non-district village on the hills, you are actually encountering Maoists fully armed, and you are leading the whole team of, I have about 60 men with me. That was a very close encounter. My vehicle was in the front, and Maoists were taken by surprise. उस इलाके में पुलिस कभी गई ही नहीं थी, बट मेरे मन में उसमें डर नहीं था। मतलब डर आज भी नहीं है, उस समय तो और बिल्कुल था कि यार कहीं चले जाएंगे, कुछ हो जाएगा। I also have the benefit of training, and I used to take the advantage of surprise. तो माओइस्ट को भी समझ में आया नहीं कौन सा एसपी आ गया, जो सुबह से 5 बजे पहुंच गया। इट वाज माय थर्ड विजिट। उनको भी जब तक समझते हैं तब तक तो गोलियां चलनी शुरू हो गई, दे हैड टू विथड्रॉ। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम इन रोहतास जब पुलिस कुड रिकवर वेपन्स इन माओइस्ट टेरिटरी। अदरवाइज उससे पहले इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन, और पुलिस में कैजुअलिटीज हर साल बहुत हुई थी। रोहतास इज अ सक्सेस स्टोरी। रोहतास वाज बैडली infested by Maoism. It had shared borders with Jharkhand, with Chhattisgarh, not very far, and Uttar Pradesh, and with the Camel Hills, with a fort, Rohtas Fort, on the hills. History was my inspiration. Rohtas को भी जब मैं देखता था, I used to get inspired by the fort. When I, तो शुरू में तो I tried to physically dominate the place, only to discover कि ये हो नहीं सकता. We tried an operation called Operation Vidhwans. उसमें हम लोग एक्चुअली चढ़े, 1000 की फोर्स थी, ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ। I've shared videos on Instagram as well, जिसमें I have my blog, Cop in Bihar, blogspot. So I've written all these stories, कैसे हुआ, how we did. रोहतास में, after doing all this, I realized unless we connect with the people, और उसमें the symbol was the fort, like Oraons, the Kharwars, all these tribals. They used to look at the fort कि हमारा origin यही है, and they used to feel very connected with the fort. But fort was in the possession of the virtual possession of Maoists. Even the tricolor
was not hoisted there for a long time. People say that after independence, no one had hoisted the tricolor, and black flags used to be hoisted on the fort by the Maoists on Independence Day, on Public Day, on such days. Oh my And this was so demeaning. So for the first time, 26 January 2009, हम लोगों ने तिरंगा फहराया वहाँ पे, तिरंगा लहराया, and that was historic. और Salute you, sir. उसके बाद से चीजें बदलती चली गई. In 2009 में elections were held for the first time on the hills. उससे पहले booths shift कर दिए जाते थे, and the story was कि voting बहिष्कार हो गया, like people are boycotted because of Maoists. But that was not the real thing. डर से लोग जाते नहीं थे. We took all risk. We did. Company of the Border Security Force (BSF) was attacked when we tried to hold polls for the first time. We had to withdraw. But soon after, with all support from the Election Commission, on 9th of May 2009, elections were held, and more than 50% of people participated in the place which was earlier known and famous for boycotting elections. People wanted to participate in the democratic process, but अब बनाओगे तो ना, बूथ वहां नहीं बनाओगे तो कोई डर से जाएगा ही नहीं दूसरी जगह वोट डालने. And then we appealed to the people, when your ancestors were so illustrious, they could build a fort so splendid in such times. और आज ऐसा माहौल है, there is no peace at all. Forget tourists, even people from other places in the district do not come here due to fear. So why should not, हमको क्यों नहीं ऐसा कुछ करना चाहिए? We should do something in our lifetime to change the situation. जितने तुम्हारे यशस्वी पूर्वज थे, तो तुम उन्हीं के वंशज हो, तो ऐसा कुछ करो कि लोग अट्रैक्ट हों, लोग जाने इस इलाके के बारे में. और तब तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड विद इन द Maoist कैंप. लाइक ऑल दिस ट्राइबल्स, उनको लगा यार ये पुलिस तो अच्छी बात कर रही है, एंड वी कपल्ड देम इन. लोगों ने एक अभियान चलाया था कम्युनिटी पुलिसिंग का. वी कॉल्ड इट सोल महोत्सव. द पर्पस वाज टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ द होल एरिया एंड द फोर्ट. It started with the flag hosting with a lot of programs in different pockets. I would personally go stay there for the night, talk to villagers, और लोग इंस्पायर करता था with stories from the past, with leaders, tribal leaders, उनकी stories लेके भाई ये ऐसा करते थे, हम भी कुछ करें, let's do something to which can change situation today. और Maoists were forced to surrender. Gradually लोगों ने उनको surrender करा दिया. People revolted against them. It's a success story. Right. आज जिस इलाके में पुलिस मारी जाती थी, लोग डर से नहीं जाते थे. There is no Maoism in that area. It all happened with that connect of history and police connecting with the people. जो ऐसे नहीं होता. Before I got posted, 2 police stations in the plains were blown up. One DSP rank officer was died in an encounter right in the plains, not very far from Patna. But within those 2.5 years, चीजें इतनी बदलती चली गई. और अब जब मैं गया था, like 2017 में, वेलकम लाइक अ लीडर. लोग माले पहना के गए थे, और पीपल फील सो, यू फील सो प्राउड एंड इलेटेड. जब ऐसा रिस्पांस मिलता है, क्या हो रहा है. सिंपल थिंग, गलत नहीं करेंगे. विल नॉट सी कि कोई नक्सल केस में गलत आदमी फंसे. with a clear intention that we want to change the area for the better. When people see that integrity and honesty coming in your works, they respond. And you have a track record, right, sir? जहाँ पे kidnapping एक time पे was reported was 150 to 200. That you brought it down to 0, which has never happened in the history of that particular territory ever. उसके बाद भी still remains 0. आज भी kidnapping नहीं होती वहाँ पे. It was so famous. वहाँ पे बगहा की हम बात कर रहे हैं. बगहा में the system of jungle parties. तो jungle parties में they had a very beautiful system. उसमें किसी को दियारे में रखते थे तो 2-3 महीने तो रखते थे. उसको शुगर कैन खिलाते थे और खाता था. और हर आदमी का जो पोटेंशियल था पे करने का, उसके हिसाब से they had facilities. So you could pay your ransom in installments. Say for example, है ना, और 5 दे दिए, फिर बाद में नहीं दोगे तो फिर 6 महीना उठा लेंगे. That was one thing. जब सैलरी मिलेगी तब दे देना, ठीक है. और दूसरा था कि भाई उसमें अगर कैश नहीं पे कर पा रहे हो तो पे इन काइंड. उसमें लिस्ट आती थी बन के कि भाई आपको 10 बोतल ये वाली शराब लानी है, 2 मुर्गा लाना है, ये 4 मार का लुंगी है, ऐसे 10 लुंगी देने हैं. It was a whole economic system operating. जिसमें कि they had gangs of 50-60 people and they used to move together. They used to kidnap people. कई बार तो ऐसा हुआ था कि बस को रोका, सारे पैसेंजर किडनैप हो गए. वो हर आदमी जो भी उसमें होगा, their families are running from pillar to post कि कहाँ गए थे हमारा आदमी, वो किसी दियारे में पड़ा हुआ होगा. And once they are kidnapped, they will be distributed between different gangs. कोई 3 आदमी को रखे हुए है, कोई झोपड़ी में 2 आदमी को रखे हुए है. तो whole system was operating. कोई यूपी से पकड़ के आ रहा है, कोई दिल्ली से उठ के आ गया, उसको ले आए. And everyone had a different set of bargain. जब मैंने ज्वाइन किया था, तो there was a filmmaker. He wanted to make a movie on ghosts.
तो there's a place in Bagha जहाँ पे वो भूत खिलाते हैं. He had come all the way from Mumbai, और he was camping in Gorakhpur. वहां से उठ के भाई साहब उठे तो उनके भी परिवार को पता चला 2 महीने बाद एक चिट्ठी गई, उसमें 1 करोड़ का रैंसम का डिमांड था. My God. एंड दे वर लाइक, एक तो उस समय बिहार का नाम सुनकर ही डरते थे, तो चले वहां से. फिर मैं उसी समय मेरी पोस्टिंग हुई थी बघा में. इट वॉज वेरी अनदर एग्जाम्पल जो स्टोरी है. तो ये 3 मराठी मनुष्य आए वहां से, अच्छे बल्कि थे और डरे हुए कि सर हम भी तो किडनैप नहीं हो जाएंगे. मैंने कहा यार तुम कहीं नहीं होगे, तुम मेरे बैरक में रहो. तो सिपाही लोगों के साथ उनको सुलाए, तो रहो तुम यहीं पे. और दे हैड स्टेड फॉर अबाउट 10 days. तो बीच बीच में उसमें भी भूत पे कहानी बना रहे थे. उनके दोस्त भी ऐसे थे. एक दोस्त था उसको कहता था कि मेरे शरीर में भूत आता है. तो जाड़े का महीना था, वो भूत आता था, वो बीड़ी पीता था, और जब आ जाता था तो बीड़ी का स्मेल नहीं आता था. देश को सेड है. और वो फिर बताता था कि पीयूष किस कहाँ है. हिज नेम वाज पीयूष कोठारी. अच्छा. है ना. तो वो इस टाइप की अजीब अजीब बहुत सारी स्टोरीज. बट ऑल दिस एंडेड व्हेन वी स्टार्टेड harvesting the sugar cane that was being planted by these gangs on illegal lands. We identified over 320 acres of land. Economic backbone was shaken. Personally, I led so many operations. Many of them got killed in encounters. And then we floated the story. What is the point of living in these jungles in DRR when the fear of the police is all pervading? Police कभी भी आ जाएगी. आज नहीं बचे बेटा, दूसरी बार आज बच गए, दूसरी बार नहीं बचोगे. With that fear, life is worthless. And then we approached the families to motivate them, to influence them, to bring some change which could bring peace in the region. It worked. तो शुरू में 1-2 लोगों ने सरेंडर किया. We did everything to fulfill the promises of the government. वही उनको जो भी पैसा मिलना था, rehabilitation scheme मिलनी थी, that should be done. तो बाकी लोग were watching very carefully कि कहीं ऐसा तो नहीं. But we stood by our words, and then 26 of them surrendered. And one of them had more than 100 cases in different parts of Bihar, in UP, even in Nepal. So that was the level. उस समय बिहार का सबसे बड़ा क्रिमिनल उसको कहते थे. He took it, and उसके बाद शांति हो गई, और शांति आज भी है. As we, hats off to you, sir. Hats off to you. So, sir, we have some audience questions where audience would like to ask you some question directly. It is a sincere request to the audience. You are talking to Mr. Vikas Vaibhav, who is the Deputy Inspector General of Police, Bihar, Anti-Terrorist Squad. He was part of National Investigation Agency. He is a persona. He is a personality himself. So, जब आप कोई सवाल करोगे, please सोच समझ के कीजिएगा. ज़्यादा सवाल मत कीजिएगा, because we have very limited time, and we really thank him for giving us a particular time today. But so before we actually go ahead and let the audience ask you some questions directly, I have a very curious question in my mind. आज तक आपने कितने encounters किए हैं? Encounters proper वाले जो बहुत खतरनाक थे, जिससे पर्सनली हुआ, 2 हुए थे रोहतास में. जो एक तो सोली एनकाउंटर था, दूसरा वाज इन अ विलेज कॉल्ड, वहीं पे धनसा विलेज है, उसके पास हुआ था. वेरी क्लोज वंस. बट उसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट तो किया ही हूँ. गोली चलने वाले मौके 2 आए थे जिसमें प्रॉपर्ली गोली चली, एंड वन वाज वेरी क्लोज. फॉर्चुनेटली both of them we survived, and we actually had made recoveries as well. So you said that अब मुझे तो रोंगटे आ रहे हैं सर. मतलब ये तो it's like मूवी में होता है. You have experienced in the real life. You said that you had bullets just moving right next to your head. It would have. Yeah, you could feel them जब सूं करके जाता है ना, आवाज, you can hear that sound of the bullet passing through your बगल से. You can experience that bullet, that sound. Are you wearing enough bulletproof jackets, or is it like just because you got an information and had to go and run the operations? उस दिन तो कुछ नहीं था. उस दिन हम लोगों ने भी नहीं सोचा था. We were also taken by surprise. That was a school building, and I had gone to see the school whether it can be used for camping of forces later. But I never expected the Maoists to be staying in that very school. बच्चे भी थे उसमें. We could not even fire within school premises grenades. बच्चों को लग जाती. But they were all, the Maoists were taking shelter in that school, and not only in that school, in rooms in different houses in the village. हम लोग बीच में फंस गए थे, and the whole village was surrounded by the forest. I've written a blog, Fire in the Forest, that describes that whole story. कैसे शुरू हुआ, कैसे गए, कैसे पहुंचे. After a 6 hours drive, we reached that place in the morning at 5 a.m. sorry. और उस समय इतना चला, and then how we withdrew, सारी कहानी है उसमें. My God. मतलब आप कह रहे हो सर, वो ये सब हम लोगों ने तो मूवी में देखा है. तो इसलिए कभी कभार वो शौक जाग जाता है कि अगर कोई रियल में किसी के लाइफ में ऐसा हुआ है. तो उस दिन तो बीपी जैकेट भी नहीं था, कुछ नहीं था. आई वाज नॉट, मतलब उस तरह से सोच के नहीं गए थे सामने मॉइस्ट आ जाएगा. हम लोग तो गए थे, दिखने गए थे, और उस प्रिपरेशन के साथ नहीं थे कि बिल्कुल सामने 5 बजे सुबह काउंटर हो ही जाएगा.
एनकाउंटर्स ऐसे ही होते हैं, पता नहीं चलता, अचानक सामने सामने हो, रियल एनकाउंटर्स ऐसे ही होते हैं, हो जाता है। On that day, you must have thanked God because of saving your life. And हाँ, उस दिन मतलब 60 लोग थे, 1000 गोलियां चली, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो वहां से पहाड़ से जब उतरे तो द फर्स्ट स्टॉप वाज एट अ टेंपल कॉल्ड मुंडेश्वरी, अनदर एंशिएंट साइट, 3rd सेंचुरी एडी। वहां गए एंड वी रियली थैंक्ड thank ऑलमाइटी कि सब लोग ठीक है, says, एंड दैट कॉन्फिडेंस की भाई चलो सब अच्छा है। I really wish we had hours and hours together to talk to you. We have Ina and Mr. Rajiv Mathur who wants to ask you a question, who is a part of this. Ina, I am going to unmute you. Why don't you quickly go? I think you were unmuted already. Why don't you quickly go ahead and ask your question? And keep it short and simple. यस यस थैंक यू सो मच विकास जी, मजा आ गया। पूरा मेरा जो एक कॉन्सेप्ट था ना, पूरा चेंज हो गया है। मैं आई Thank you. नेवर यूज्ड टू रेस्पेक्ट पुलिस ऑफिसर्स, somewhere down the line because of the environment and the way we go through the things, वो एक रेस्पेक्ट नहीं थी। आज उस रेस्पेक्ट को बहुत बड़ी लेवल मिला है। तो आई रियली सल्यूट यू। एंड थैंक यू सो मच। मेरा नजरिया और लोगों के लिए भी बदल गया है, बिकॉज आई कुड सी द इनसाइड, और बहुत मजा आया सर। सर सिर्फ एक क्वेश्चन छोटा सा है कि क्या कभी आपने इतने सारे डिसीजन लिए हैं, उनमें से कभी ऐसा कभी रिग्रेट किया आपने कि ये डिसाइड किया और ये उतना अच्छा नहीं ले पाया मैं? इफ यू आर ओके इन शेयरिंग दैट विद अस। नहीं, आई एम वेरी लाइक, जो भी है इट्स लाइक एन ओपन बुक, मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है जिसमें बाद में इट्स मोर बिकॉज ऑफ माई द वे आई थिंक। आई एम वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और कभी भी ऐसा ये द वे आई लुक एट थिंग्स इज इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। जैसे मेरी वाइफ भी बोलती है ना कि तुमको तो सब कुछ अच्छा ही दिखता है, मतलब तुमको इतने गंदे घर में भी कोई इफ शी गोस टू अ रूम फाइंड्स कि ऐसा है वैसा है, तो पीपल हैव द रीजंस टू कंप्लेन। बट मैं उसमें देखता हूँ नहीं, देखो इसमें लाइट भी जल रही है, पहले तो नहीं जलती थी, तो यू लुक एट द अदर साइड। तो इसलिए मुझसे अगर उस तरह से पूछेंगे तो वैसा शायद नहीं है। आई हैव नो रिग्रेट सो फार, एंड दैट वाज माय गोल ऑफ लाइफ। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। इन द एंड ऑफ द जर्नी वन शुड बी satisfied and happy with no regrets. So far, none. Salute to you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Ina, for asking that question. We have Mr. Rajiv Mathur who wants to ask you the question next. By the way, Vikas sir, Rajiv Mathur was our previous guest, who is apparently a CEO of one of the leading security organizations there in India. So Rajiv is here. Thank you so much, Rajiv, for joining us in Glip Talk 3.5. You were in Glip Talk 3.4. So please go ahead and ask your question directly. थैंक यू सम्राट। विकास जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी बातें सुन के ना बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि यू नो हाउ व्हेन यू आर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, एंड सो आई एम वन ऑफ देम, जो बड़ी इच्छा थी मेरी यूनिफॉर्म पहनने की, मैं नहीं पहन पाया सर। सो आई एम वन ऑफ देम, जो आप जैसा लोगों को आपने डिस्कस किया। बट यू नो बाय चांस मैं आई एम स्टिल इनटू दैट प्रोफेशन वेयर आई कैन स्टिल हेल्प एंड डू समथिंग फॉर द कंट्री. So as Samrat just said that I work for a security organization, and we work closely with people like you, or the police department, or the central agencies and the defense. So इस लिहाज से आप देश की सेवा कर रहे हैं और हम आपके आप जिस डिपार्टमेंट्स की सेवा कर रहे हैं. So I'm still connected and doing something for the country. And it was wonderful to hear you today, sir. My question to you is that abhi during COVID time, there is a new normal. The world has changed. Corporates ka, industries ka, dunia ka, everybody is working in a different style. Work from home, of course, aapke liye work from home is not even in your books. But is there anything that has changed ya aane wale samay mein? Is there anything? I mean, of course, use of more technology, use of more IT based operations will flow in daily working. But any other thing that due to COVID or due to the new normal or going forward will change in the operations of the police departments, or any, for that matter, any government security agency? That's my question to you, sir. Thank you. In fact, the police had a very different role right when the lockdown was announced. No one had expected aisa achanak aa jayega. There was no SOP how to implement it. Lots of things went on the social media as well. Ki kya chal raha hai. Police has also learned a lot. Like, we are always responders to crisis. कभी भी कुछ
A single thing, a phone call can change your life. We've learned lots of lessons. पुलिस वर्किंग में भी बहुत चीजें बदली हैं. मतलब जैसे होता था, we operated on half strength, did things to maintain distancing. अभी भी चल रही हैं in some offices. But पुलिस जॉब ऐसा है कि बहुत कुछ करके भी आपको रहना है. You have to live with that danger also. तो अब what I can see the change is like जो भी हमारे constables हैं या जो भी precautions हैं, they are taking all those precautions very properly, but still doing their duties. उससे आप कुछ कर नहीं सकते. मतलब और जैसे अब मैं ATS में हूँ, ATS में भी we got about 20 people, करीब 300 का strength है हमारा, and 20 of them tested positive in this whole time. Fortunately, every one of them did well and is presently very healthy. Most of the people in police, काफी लोगों को 20 तो ऐसे थे जिनका एक्चुअली टेस्ट हुआ, they were asymptomatic. तो चेंज उस तरह से अगर मैं देखता हूँ उस पहले और अब में, तो पहले जो था we knew what type of calamities can come, they were defined, but COVID was something which was totally new. So next time something new happens which is totally out of the box, maybe we can come with a better response. This time we were taken by surprise. We did not know what to do. Quarantine was a very new word for most of the police personnel as well. उसमें लेकिन आधे पुलिस लाइन में क्वारंटाइन चल रहा था. We were running isolation centers. Next, something not exactly like this, but another surprise when it comes. Maybe our response will be more professional and better with the experience that we gained in this time. Thank you so much, sir. Thank you so much, and thank you for whatever the police force is doing. I mean, even otherwise and during these times, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप लोगों का जितना जितना धन्यवाद और अभिनंदन किया जाए उतना कम है. Thank you so much. Thank you so much. Great. With this, we will take 2 more questions because we've already short up our time. So, Santosh, you are already unmuted. If you just can quickly ask your question, very short, simple, and crisp. Good evening, sir. Good evening. Sir, I'm one of the proud Biharis, more so because आप जैसे personality वहाँ पर है. I'm so happy that I have the opportunity to talk to you. सर एक चीज केवल छोटा सा सवाल, जैसे मैं इस बार लॉकडाउन के दरमियान 2 महीने लगभग मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और एक छोटा सा मैगजीन चलाता हूँ, सिक्योरिटी इंडस्ट्री को कवर करता हूँ, और तो 2 महीने लगभग लॉकडाउन में मैं बिहार में रहना पड़ा था, वहाँ फंस गया था. सर एक चीज मैं, जैसे मेरा जो अनुभव हुआ इस 2 महीने में, जो बहुत नजदीक से देखा, जैसे करप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे नहीं हैं, जो हमें दिखे हैं. सर आपका क्या अनुभव है राइट फ्रॉम द टाइम यू ज्वाइन द सर्विस एंड राइट, बस उस पर थोड़ा सा अगर आप कुछ डालें. करप्शन है, there is no denying the fact. करप्शन है और ऐसा नहीं है. अगेन लाइक सिस्टम में बना हुआ है, तो उसमें सिस्टम में ऐसा बना हुआ है जिसको बहुत जल्दी बदल नहीं सकते, है ना. मतलब बहुत जल्दी आप यू कैन मेक ऑल योर एफर्ट्स, और हो सकता है जैसे विद अ गुड लीडर देयर आर थिंग्स विच चेंज फॉर सम टाइम, बट देन चेंज द लीडर, चेंज द सर्कमस्टेंसेस, फिर देयर इज अ टेंडेंसी कि ऐसा ही चलता रहेगा. तो व्हाट आई लुक, व्हेनेवर आई लुक एट करप्शन, मैं उसको देखता हूँ एज अ सोशल प्रॉब्लम. जब समाज में भी आप देखोगे तो लोग अगर लड़के की शादी करना चाह रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन विद गवर्नमेंट जॉब. और क्यों देख रहे हैं? उसमें देख रहे हैं ऊपरी कमाई कितनी है. बहुत सारी चीजें आपको वैल्यूज जो आती हैं वो सोसाइटी से आती हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट भी कोई अलग तो है नहीं, उसी सोसाइटी से निकल के आया है. करप्शन इज गोइंग ऑन अदर डिपार्टमेंट एज वेल एज द पुलिस डिपार्टमेंट. इसको अगर बदलना है तो सोशली इट हैज रोल ऑफ एजुकेशन, इट हैज रोल ऑफ सो मेनी थिंग्स, प्लस मोस्ट ऑफ देम वैल्यूज जो हम इम्बाइब करते हैं. पर्सनली दैट इज द एस्पेक्ट क्या है. बट पर्सनली इफ वन वांट्स टू मेक अ चेंज, डेफिनेटली वन कैन मेक अ चेंज and one can try to make the system more and more transparent. एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको. जैसे I was city SP पटना way back in 2006. उस टाइम बहुत लोग मिलने आते थे, and most of them were such people जिनकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती थी. और मोटरसाइकिल एक तो चोरी हो गई उस समय in whole of Patna city, about 150 odd motorcycles used to get stolen every month. तो 150 लोगों की मोटरसाइकिल चोरी हुई, and his pain starts from the very moment. एक तो चोरी हुई तो FIR कराने में दिक्कत, कहीं कहीं हो सकता है शायद 500 खर्च हुआ हो उसका. एक बार FIR हो गया तो नाउ ही नीड्स अ फाइनल रिपोर्ट जिसमें उसका इंश्योरेंस क्लेम करना है. अब वो प्रोसेस जो है लगभग 2 महीने चलता था. वो एक ऑफिस चक्कर लगाता था कि भाई इसका DSP ने सुपरविजन किया या नहीं, वो DSP साहब रिपोर्ट निकल गई तो SP ने दिया या नहीं, SP का रिपोर्ट निकला तो थाने से चार्जशीट बनी या नहीं,
जो फाइनल रिपोर्ट की, फाइनल रिपोर्ट में कुछ मेहनत नहीं थी, वो था कि कोई क्लू नहीं मिला, मोटरसाइकिल तो मिली नहीं, होल गैंग वाज ऑपरेटिंग, जो भी चल रहा था। आज भी बहुत चोरी हो रही है। अब थाने में अगर रिपोर्ट बन गई तो कोर्ट में जमा हुई कि नहीं, कोर्ट में जमा हुई तो उसको कॉपी मिली या नहीं। दिस होल स्टेज, दैट बाइक व्हिच यूज्ड टू कॉस्ट 35-40,000, इस व्यक्ति का 5,000 रुपए खर्च होता था टू गेट दैट रिपोर्ट एंड टू क्लेम दैट इंश्योरेंस। फिर इंश्योरेंस वाला अलग कहानी होगा, वहां भी लगता होगा। तो यार ये क्या है? और जितने लोग मिल रहे हैं, कोई किसी से फोन करवा रहा है, कोई सीनियर ऑफिसर फोन कर रहा है। आई मेड अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। भाई हर क्राइम मीटिंग में जब आओगे तो आई गिव यू 45 डेज। 45 डेज में आप गाड़ी या तो खोज लो, और नहीं खोजते हो तो मुझे आई नीड दैट नंबर, डिस्पैच नंबर एंड द डेट ऑफ रिसीप्ट इन कोर्ट। नहीं आओगे तो वही सिंपल सॉल्यूशन है कि भाई आपका पे जो है वेतन बंद हो जाएगी आईओ की, मतलब विल नॉट पे यू अनलेस सैलरी बंद हो जाएगी। इट वाज ऑल छोटा सा सिंपल एक्सेल शीट पे बनाया, नो मैसिव सॉफ्टवेयर, आ गया उस पर डेट बनी, डेट चढ़ती थी डेली, एंड एट द एंड ऑफ 45 डेज देखते थे किस केस में वो डेट चढ़ा या नहीं चढ़ा। जिसका नहीं चला वो निकला प्रिंट आउट, सैलरी बंद करने का आदेश निकल गया। इट वर्क फैंटास्टिकली। लाइक जो महीने में 50-100 लोग आते थे इसी काम से मिलने के लिए, और डेली 5-10 लोग तो यही आते, बंद हो गए। और आईओ परेशान रहता था कि मेरी वो टाइम तो गई या नहीं गई। लाइक थिंग्स एंड ट्रांसपेरेंसी इंड्यूस्ड बाय अ प्रेशर व्हिच इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सिमिलर थिंग्स लाइक अब बहुत सारी चीजें हैं, यू कैन हैव सीसीटीवीज, cameras installed on vehicles. We'll have to think in a different manner. Corruption as a part of society will stay, and people, as long as they have the tendency to gain unlawfully or to gain something which is not proper, they will try to involve in every means to do that. But उसमें आप circumstances थोड़ा change करते जाओगे, things will definitely become more transparent. And what we wish the system to deliver with such through a different approach, things do change. Not everything will change, but definitely the system will deliver in a better manner what it is supposed to deliver. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much for your question. With this, we'll take the very last question of this particular talk show. We have Mr. Murali Satya. Murali, if you can just quickly. Yeah. Good evening, Vikas ji. Thanks a lot for joining us and sharing your experiences. I'm joining from Bangalore. I work for a company called Datamatics. So my question is, like, I was interviewing a few people for a few open positions, and I was they were working for KPMG, but currently operating from Patna. So I see, like, many good talent going back to their hometowns across all states and including Bihar. So is this a good opportunity for Bihar to make use of the talent which is coming back to the hometown, and to give more opportunities for them so that they remain in the hometown, and also to give a boost to IT industries so that you can also make use of AI and ML and latest technologies which can be deployed into not only to the police force but also into the general state government. Certainly, if such people who are quite talented, quite experienced, when they come back, that effect will always be there. That even that ripple effect will be there, because they will be interacting with people and some influence will be going on. At present, what I think is, like, we still do not know very properly as a system how to harness such talent and use it for the maximum benefit of the state. But certainly with more people coming in, circumstances changing, and after post-COVID, with an opportunity, like people, most of them who were working in Bangalore or in some other place, actually presently they are today in Patna and operating from their homes. So things have changed. With such people, if we can collectively think of better ways, maybe some better solution would emerge. Great. So I think, Murali, your question was a little different to get the proper answer, because I don't know to what extent the question was justified to ask, but thank you so much for your question. Mr. Vikas Vaibhav, he is he's working as a Deputy Inspector General of Police. So AI, ML, I'm sure, even if he knows and is very much interested in getting his hands in, I think question we thought it would be a little different. But no worries, at least you had the opportunity to ask that question, you asked the question. So with this, we have already shot up our time, and knowing the value of time, knowing that you are
a busy person and you were just out on a vacation yesterday and day before because of the long weekend with your family. I hope you had a great vacation. आप कविताएं बहुत अच्छी बोलते हो सर. एक दो पंक्तियां अगर आप सुना दोगे जाने से पहले तो दिल को बड़ी बड़ी सुकून और शांति मिलेगी. कविताएं मैंने भी हिंदी में लिखी हैं 5, लेकिन कविताएं जो इंस्पायर करती हैं अपनी तो कथाएं. और एक कविता मैं उसी पे बंद करूंगा. दिनकर की 2 पंक्तियां हैं. दिनकर ने एक कविता लिखी थी चांद और कवि. उसको जब मैं विजुअलाइज करता था तो आई यूज्ड टू बिलीव द पोएट वाज सिटिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा लुकिंग एट द रिवर. उन्होंने लिखा, so he's conversing with the moon and he says, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद. रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद. आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है. आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है. उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता. उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है. But all the problems that we create are self-created. And we start living in those dilemmas, we lose our sleep, we do things like that. Just इस लाइन को हमेशा याद रखता हूँ whenever I'm in dilemma कि कई बार देखो उलझन कहाँ से आई. And most of the time you discover कि उलझन तो अपनी बनाई हुई थी भाई. उलझन थी नहीं. And then you really get inspired by the lines which continue. Thank you. Great. So sir, with this, तहे दिल से आपकी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. Thank you so very much. अगर आप जाने से पहले कुछ शब्द Glip Talk as an initiative के बारे में बोल देंगे, तो I think that is going to be fantastic and you will make. It was a pleasure conversing with you and I wish you the very best. And I would also like to see अगर guests और भी आएंगे, पुरानी भी मैं सुनूंगा जिन लोगों से बात हुई है आपकी, और आगे भी I will also follow up in the future. My best wishes to you. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. We wish you all the very best. You're a true leader who leads by example. You are our role model. And our best wishes are there with you, sir. May you shine, may you reign forever and ever and ever with your endeavors. Thank you so much, everyone, for joining us and taking your time out on a Sunday evening. We will have our guests lined up for the next weeks. So please do join us at 5 to 6 in the evening, because today we had Vikas sir's schedule was a little busy from 5 to 6 in the evening, because of which we had to prepone our show timing normally at 4 to 5. Thank you so much, sir. Once again, you have a wonderful day ahead. Have a wonderful weekend. Give my loads of love to your little one, to your I think you have a daughter, right? You have a beautiful daughter. Daughter and a son. Yes. And to your wife, give my regards. And you take care of yourself. I will definitely be staying in touch with you. Thank you. Take care, sir. Thank you so much. Bye-bye.